یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ آج اس گھر کے اندر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑنے لگا ہے، تو سب سے پہلے جو باب کھولا جاتا ہے، سب سے پہلے جو عنوان جس پہ گفتگو ہوتی ہے وہ حسب اور نسب ہوتا ہے۔ اگر نسب کو دیکھیں تو کائنات کے اندر بے شمار نسب موجود ہے، اور ہر بندہ اپنے نسب پر اتراتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا جو نسب ہے وہ بڑا عالی ہے، میرا جو خاندان ہے وہ بڑا عالی ہے، میرا جو خاندان ہے وہ بڑی شان و عظمت والا ہے۔ اگر آپ اس زمانے کا، اس معاشرے کا مطالعہ کریں اور ہر ایک خاندان والے سے پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا کون سا خاندان ہے، تو وہ کہے گا جناب میں جاٹ ہوں، میری بڑی شان ہے، میری بڑی بھینسیں ہیں، میں بڑی عظمتوں کا حامل ہوں۔ مختصر یہ بات کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی کائنات کے اندر خاندان اور نسب آئے، ہر ایک خاندان کو اعلیٰ ہی کہتا ہوں، برا کیوں کسی کو کہنا ہے۔ لیکن جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور جملہ عرض کرنے والا ہوں وہ دل کی تختیوں پہ لکھنے والا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری کائنات کے اندر جتنے بھی نسب آئے ہیں یا صبح قیامت تک نسب آنے والے ہیں یا آئیں گے، ہر نسب والا یہ کہتا ہے میرا نسب اعلیٰ ہے، میرا خاندان اعلیٰ ہے، میرا خاندان شان والا ہے، میرا خاندان آن والا ہے، میرا خاندان مقام والا ہے، میرا خاندان مرتبے والا ہے۔ مگر وہ بندہ جو شان اپنے خاندان کی بیان کرنے والا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے بھائی تیری شان کہاں لکھی ہے، تیری عظمت کہاں لکھی ہے، تیرا مقام کہاں لکھا ہے، تیرا رتبہ کہاں لکھا ہے، تو آنکھیں نیچے ہو جائیں گی، گردن جھک جائے گی، جواب نہیں دے سکے گا۔ لیکن اگر خون مصطفیٰ سے پوچھو کہ ذرا بتاؤ اے سیدو تمہاری شان کہاں ہے، تو وہ قرآن کو اٹھا کے کہے گا، ارے قرآن کو اٹھا اور پڑھ کے دیکھ، خالق کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم بھی تو اہل بیت ہیں جن کو اللہ پاک نے ہر ناپاکی سے پاک کر دیا ہے۔ اور یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جس کی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جس کی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خاندان جس خاندان سے حضور غوث پاک کا تعلق ہے وہ کوئی عام خاندان نہیں ہے، وہ ساری کائنات کے خاندانوں کا سردار ہے، ساری کائنات کے خاندانوں کا سردار ہے، کیونکہ سرداری اللہ کے رسول نے عطا کی ہے۔ اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی تو میرے نبی کا فرمان سنتے چلو۔ حضور نے فرمایا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبتوں میں مر گیا اللہ پاک اسے مقام شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی بات کی، میں مختصر یہ کر رہا ہوں تو پھر ایک اور انداز سے عرض کر دیتا ہوں یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ
अल्लाह नबी का घराना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल वरा है। एक घर मेरा अपना ये तुम आपस का घराना ये घराना वरा उल वरा है। वो सवाल पूछ रही क्यों वरा उल वरा है, शान क्यों है? इसलिए कि इसमें हसनैन है सैयदा है। सुभान अल्लाह। इसे घराने में हसनैन है, इमाम हसन हुसैन है नहीं। फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह जब माल गनीमत आया ना, तकसीम शुरू हुई तो हजरत इमाम हसन हुसैन से शुरू किया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला से किया, अब्बा जी पहले मेरी बारी थी, मैं खलीफातुर रसूल का बेटा हूँ। फरमाया तू बेटा तो है पर जरा ये बता कि हसनैन के बाबे दशत मरा बाबा है। कह रहे तो हम फिर क्यों ना कहें अल्लाह अल्लाह नबी का घराना घराना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल वरा है। इसमें हसनैन है सैयदा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु आपका नस्ब वो है जो सबसे आला नस्ब है, जो सबसे शान वाला नस्ब है, मकाम वाला नस्ब है, क्योंकि आप असली और हुसैनी सैयद हैं। आप असली और हुसैनी सैयद है। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक जो है वो नस्ब खानदान सदा से है। तो सदात का जो खानदान है सबसे आला है। बस आखिरी बात गुफ्तगू खत्म हो गई। बस ये बताना चाहता था कि हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम अल्लाह के वली नहीं है, सईदों के सरदार है। एक बात को आप ज़ेहनशीन कर लें, हज़रत गौसे पाक उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो सारी कायनात के खानदानों का सरदार है। सुभान अल्लाह। और वो खानदान वो है जो सारे खानदानों का सरदार है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। आखिरी बात है, थोड़ी सी है लंबी जरा। आज इस दौर के अंदर कोई भी मौलवी साहब है, मेरे हज़रत खज़र मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा सोना हमें 10 अता फरमाया है और उसके ऊपर हम अल्लाह के फज़ल करते चलते हैं। किसी मौलवी को किसी को गंदा मंदा नहीं कहना और अपनी जो अकीदा है वो बयान कर देना है। जितना टाइम उस पे लगाने हम हुजूर की सुना पे लगा देते हैं। कोई भी मुफस्सिर है, मुहक्किक है, मुहद्दिस है, मुहद्दिस है, खतीब है, जैसा भी बंदा है तकरीर करता है, खिताब करता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है साउंड सिस्टम। ऐसा ही है जी जी। कोई भी मौलवी साउंड के बगैर बोल सकता नहीं। कितनी देर बोलेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही ना। लेकिन एक अजीम शख्सियत ऐसी भी है कि जिसके सामने 10,000 का मजमा है। 10,000, 10 बंदे नहीं, 10,000 का मजमा है, सुनने वाले हैं। और पहला बंदा जो बैठे आपके कदमों के पास, उससे लेकर आखिरी बंदे का, जो आखिरी बंदा है 10,000 का, आखिरी जो बंदा है, पहले बंदे से आखिरी बंदे तक आवाज और खिताब को सुनने वाला ऐसा ही सुनता है जैसे पहले सुनता है। आवाज जैसे पहले को पहुंचती है। आपकी गुफ्तगू को सुनता था। मैंने जब ये आपकी रवायत को पढ़ा, दिल खुशी से बाग बाग हो गया, क्योंकि एक साहिब वली की ये करामत है। लेकिन जब आगे बढ़ता गया,
अजीब मामला था। मैं सोच में था कि 10,000 का मजमा हो, बगैर स्पीकर हो, बगैर साउंड के कोई गुफ्तगू कर सकता नहीं है। ये 10,000 का मजमा सुनता कैसे होगा? तो जो बात जाहिर हुई आप उसको सुने, मजा आएगा, लुत्फ आएगा। वो गुफ्तगू का अंदाज कैसे बना, वो गुफ्तगू का चाल चलन कैसे बना। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अभी मैं वाज़ और नसीहत नहीं करता था, मैं तकरीर नहीं करता था, मैं खुतबा नहीं देता था कि सोहर की नमाज का वक्त करीब था तो मेरे पास सैयदुल आलम की ज़ियारत हो गई, असूर आ गए। फरमाया कि अब्दुल कादिर जी या रसूल अल्लाह, फरमाया कि तुम वाज़ और नसीहत क्यों नहीं करते, खिताब क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते? आज की बड़े फसीह व बलीग बंदे हैं, फसीह व बलीग इल्म रखने वाले इंसान बैठे हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, मुझसे नहीं होती। तो मेरे गौसे पाक के ने जब ये अर्ज किए ना तो हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल कादिर अब नजदीक आ, मैं मुश्किलें आसान करने वाला रसूल हूँ। हुजूर गौसे पाक नजदीक हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 दफा, कितनी दफा? 7 दफा हुजूर गौसे पाक के मुंह में अपना लुआब थूक डाला। सुभान अल्लाह। कितना? 7 दफा लुआब थूक। इस वजह से कह तो समझ आ जाएगा। 7 दफा लुआब दहन हुजूर ने अता किया। शाले बयाले माशाअल्लाह वो किसी का बाप ये कहे मेरा पुत्र अपना मुंह नजदीक कर, मैं तेरे मुंह में थूकना चाहता हूं, तो वो थूक सकेगा? नहीं हो सकता भाई। बेटा के अब्बा जी खैरते है मनिया, मैं आपका बेटा हूं, आपका नूरे नजर हूं, आपका लख्ते जिगर हूं, मेरे सांसों से आपकी सांसें चलती हैं, मगर ये कैसा अजीब बात आप कर रहे हैं कि मुंह को नजदीक कर मैं तेरे मुंह में थूकना चाहता हूं। अब्बा जी आपको पता नहीं है कि लुआब के अंदर, थूक के अंदर जरासीम है, बीमारियां हैं। आप मेरे मुंह में थूकेंगे, बीमारी आएगी, जरासीम आएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा। बाबा जी नहीं नहीं, आप थूके ना, ये नहीं हो सकता। बाप अगर बेटे के मुंह में थूके, बेटा मंसूर नहीं करता। अब ये अब्दुल कादिर था, गौसे आजम थे, असूर ने कहा अब्दुल कादिर चेहरे को नजदीक कर, मैं थूकना चाहता हूँ, लुआब अदा करना चाहता हूँ। अब्दुल कादिर ये बताना चाहते थे तेरा लुआब और है, मुस्तफा का लुआब और है। सुभान अल्लाह। तेरा लुआब और है, मुस्तफा का लुआब और है। अरे मेरे लुआब के अंदर, मुस्तफा के लुआब के अंदर फर्क कैसा है? फरमाया तेरे लुआब के अंदर और मेरे लुआब के अंदर फर्क ये है, अगर मुस्तफा करीम का लुआब एड़ी पे लग जाए जहर खत्म हो जाता है। अगर यही लुआब दहन कतादा की आंख में लग जाए, आंख दुरुस्त हो जाती है। अगर यही लुआब दहन जानवर की हड्डियों में चली जाए, 1400 ज़ियादा खाना खाते हैं। अगर यही लुआब दहन खैबर के मौके पर अली की आंख में लग जाए, खैबर फतह हो जाता है। ये लुआब कोई आम लुआब नहीं।